Yes, we are already studying the chapter thermal properties of matter, right? Okay, so last time हमने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी स्टेडी स्टेट का मतलब एक्चुअली एक्सप्लेन किया था, समझा था, और अभी आज के लेक्चर में हमको उसके आगे का जो कंसेप्ट है तो वो हमको स्टडी करना है. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज whatever we have done last time. Yes. Okay. So see here, we already studied that the steady state is a state at which the temperature of all the points of body just become constant. ठीक है, तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर सपोज एक रॉड लिया जाता है, सपोज ये रॉड है हमारे पास, और उसको अगर हम हीट करना चालू करते हैं, ठीक है, इफ यू जस्ट स्टार्ट हीटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट हियर, इस पॉइंट को हमने हीटिंग चालू किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीट विल जस्ट ट्राई टू फ्लो in this direction from left to right. Okay, so when the heat flows, what happens is there is a gradual change in the temperature with respect to distance. Okay, तो अगर हम अलग अलग पॉइंट्स पे अगर टेम्परेचर देखेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी थर्मोमीटर यहाँ पे रखे थे, सो इस थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा दिखाता है, इसका थोड़ा कम दिखाता है, ठीक है, इसका उसके आगे का जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर और थोड़ा सा कम हमको दिखाई देता है, और उसके बाद का जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर और कम और कम, और इस तरह से हम देख सकते हैं. सो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द टेम्परेचर कंटिन्यूअसली एज वी कैन जस्ट मूव फ्रॉम दिस लेफ्ट टू राइट हियर इन दिस वे. सो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर का डिक्रीज होता जाता है. सपोज देयर इज अ टेम्परेचर, सपोज यहाँ पे T1 जो टेम्परेचर है इस पूरे हाई टेम्परेचर पे, मतलब ये जो हॉट जंक्शन है या हॉट जो एंड पॉइंट है उसका टेम्परेचर मान लो T1 है, और ये जो कोल्ड है दूसरा एंड पॉइंट जो है उसका टेम्परेचर सपोज T2 है, ठीक है, एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज गोइंग टू बी सपोज L. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हम मान लेते हैं L के बराबर है, which is going to be actually the length of the rod itself here. So we can just try to find out the temperature gradient here. So what is the temperature gradient? So the temperature gradient is defined as the rate of fall of temperature with respect to distance. That means we can just denote it by delta T upon delta X, where delta T can also be written as T1 minus T2, which is the full temperature difference. T1 minus T2 we can just keep here, and the distance between these 2 points in which the temperature difference is T1 minus T2 is actually going to be the length of this conductor here, or length of this rod here, we can see that is L in this way. So the temperature gradient is obtained to be simply T1 minus T2 upon L, no doubt. तो ये कंसेप्ट है, ये हमको अच्छी तरह समझना है. डेल्टा T upon डेल्टा X stands for the temperature gradient, which is the rate of fall of temperature with respect to distance. If suppose for example, जैसे उस दिन भी हमने एग्जांपल दिया था, सपोज यहाँ पे ये टेम्परेचर इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है तो वो मान लो ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेल्सियस है. सपोज यहाँ पे अगर टेम्परेचर सपोज कुछ 150 डिग्री सेल्सियस बनता है, यहाँ पे सपोज 120 है, then again here it is going to be suppose 90, and here it is going to be 60, 30, and then so on like that. जरूरी नहीं कि लास्ट एंड पॉइंट का टेम्परेचर 0 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं, इट मे बी एनी अदर थिंग also other than 0 also. So but what can we consider here, and suppose that all these points are just at a distance of 2 centimeter from each other. Okay, तो हर दो पॉइंट्स के बीच में 2 का गैप है,
2 सेंटीमीटर का गैप है. So what can we say? What is the temperature gradient in this case here? So we can just try to find it out. So just take the difference of the temperatures and just divide it by the distance between them. That means we have to work it out in this way. 180 minus 150, which has to be divided by 2 here, which is actually equal to 30 upon 2, which is going to be actually 15 here in this way. Correct है? So इस तरह से हमको ये मिलता है 15 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर. We can say it is going to be the temperature gradient. Even if you just try to find out it from this interval, also we can just get it as the same thing. Just check. 150 minus 120 is again 30. That is to be divided by 2, which is actually again 15 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर. सो ये जो है 15 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, ये एक्चुअली हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है. तो इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल सकते हैं. और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखो, अगर सपोज ये जो फाइनल टेम्परेचर ये यहाँ पे ये भी डिस्टेंस सपोज 2 सेंटीमीटर है, और इस T1 का जो वैल्यू है वो सपोज मान लो 210 है, और ये जो लास्ट का जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है. तो हम देख सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर का जो डिफरेंस है तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से. फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखो 210 माइनस 30, राइट. तो ये जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T1 है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सपोज T2 है, और उसको हमको डिवाइड करना है सपोज ये टोटल लेंथ से. अभी देखो, लेंथ ऑफ द रॉड इज गोइंग टू बी 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, मतलब 6 बार 2 ऐड करना है. So when we add 2 6 times, it actually becomes 12 centimeter. So you can just see that this 12 centimeter is actually going to be the length of the whole rod, and hence we can just get this as 180 divided by 12, which actually happens to be once again 15 degrees Celsius per centimeter, which is actually going to be the temperature gradient in this case at the steady state. ओके, ये सब जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में हम तभी बात करेंगे जब स्टेडी स्टेट अटेन किया जाएगा. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल स्टेडी स्टेट इज अटेन्ड, वी कैन नॉट टॉक अबाउट द टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, एंड व्हाट इज द स्टेडी स्टेट? द स्टेट एट विच दैट ऑल थर्मोमीटर्स, द टेम्परेचर ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी बिकम्स रिस्पेक्टिव कांस्टेंट्स. मतलब कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर टाइम के हिसाब से ये टेम्परेचर सब अगर कांस्टेंट बन जाते हैं तो उस केस में उसको हम बोल सकते हैं द स्टेडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड. ठीक है, देयर इज नो फर्दर इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर इवन इफ वी आर प्रोवाइडिंग द हीट. ओके, हम हीट दे रहे हैं, हीट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन, बट स्टिल देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, बिकॉज जितना हीट यहाँ पे एंटर कर रहा है उतना ही हीट यहाँ पे लीव भी करने वाला है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एंटरिंग एंड अमाउंट ऑफ हीट लीविंग will actually be the same in this case, and that's why heat is supposed to just flow through this cross section of this conductor here. So therefore there is no rise in temperature after that point. So that is called as a steady state, and at the steady state only we can just try to define the temperature gradient as the rate of fall of temperature with respect to distance in this way here. Okay, now we can just understand what does the rate of heat flow depends upon. अभी देखो यहाँ पे ये जो rate of heat flow होता है, see there is a concept called as the rate of heat flow. How can we define it? Rate of heat flow, as its name suggests itself, it is defined as the amount of heat flowing per unit time. That's it. So simply we can see that the amount of heat flowing per unit time is actually called as the rate of heat flow. Remember, so that means the amount of heat flowing per unit time. तो उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक तरफ से उसको हम रेट ऑफ हीट फ्लो बोल सकेंगे. इन द सिंबॉलिक फॉर्म वी कैन जस्ट से, अब देखो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. हीट जो है वो एक तरह से एनर्जी ही है, और एनर्जी को हम वर्क डन के साथ भी इक्विवेलेंट बता सकते हैं. सो एज वी नो दैट दिस वर्क डन अपॉन टाइम इज नथिंग बट द पावर. इफ यू हैव सीन इन द मैकेनिक्स, वर्क डन अपॉन टाइम is called as power. So in the same way here, energy upon time
can also be called as the thermal power. And also here in this case, the amount of heat flowing per unit time is also called as the thermal power. Remember, it is not called thermal power actually, but we can just consider it equivalent to thermal power, and that power will actually be denoted by P here in this case. तो उसको हम P से अगर denote करेंगे तो ये P जो है तो वो बन जाएगा actually heat amount of heat flowing which can be denoted by Q here, and this T time will be denoted by T here. So here this is the concept of rate of heat flow, which is also called as the thermal power. Okay. Or just don't remember this thermal power word. We can just call it as rate of heat flow only, because thermal power has a different different रेफरेंस, मतलब उसका जो रेफरेंस है वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूसरा है उसका, तो थर्मल पावर नहीं बोलेंगे उसको, वी कैन जस्ट कॉल इट एज रेट ऑफ हीट फ्लो, नो प्रॉब्लम. बट व्हाई इट इज डिनोटेड बाय P, we can just remember it is equivalent to thermal power, and that's why it is denoted by P. Okay, and what is the SI unit of P? We can see it is going to be watt. Okay, जो हम जानते हैं ऑलरेडी. अभी ऑब्वियसली इस पावर को भी चार यूनिट्स बन जाएंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं हीट के लिए भी ऐसा ही होता है. तो वैसे हमारे पास ये पावर के भी, मतलब थर्मल पावर या उसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, उसके भी चार यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा मैकेनिकल SI यूनिट, और उसमें सीजस भी हो जाता है, और दूसरी तरफ मैकेनिकल के बदले थर्मल भी आ जाता है. ठीक है, थर्मल. अभी जैसा कि हम जानते हैं हीट के ही 4 यूनिट्स है, तो उसकी वजह से पावर के भी या रेट ऑफ हीट फ्लो की भी 4 यूनिट्स रहेंगे. So what is the mechanical SI unit of thermal power or rate of heat flow? We can say it will be actually joule per second, which is actually called as watt. Okay. Then again, the mechanical CGS unit will actually be the erg per second. Okay, erg per second, which is not called something else, but it is denoted by erg per second only, no doubt. Then again, here, in case of the thermal system, okay, the SI unit is given by kilocalorie per second. Okay, kilocalorie per second. Yes, and here in the case of CGS system, the thermal unit becomes actually calorie per second. Yes, so calorie per second. So these are the 4 units of rate of heat flow. We can just remember. And here एक सिंपल सी बात हमको यहाँ पे याद रखनी है कि दिस रेट ऑफ हीट फ्लो, ये जो कंसेप्ट है, this is very similar to our electric current. If you just remember the concept of electric current, whenever there is a conductor and some potential difference is maintained across the conductor to end points of the conductor. For example, suppose these are the end points of a electric conductor, and suppose that this terminal is connected to a positive terminal of the cell, and this terminal is connected to negative terminal of the cell. Then a current starts flowing through this conductor. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि charge is flowing in this conductor, correct है? And current actually, electric current is actually defined as the amount of charge that is flowing per unit time. ये अगर तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर ठीक से पढ़ा है तो तुमको सभी को याद होगा, पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट I is given by the formula Q upon T, where Q stands for the charge and T stands for the time. But here the only difference is that this Q is going to be the amount of heat here in this case, where time is T is going to be the time only. But ये जो फॉर्मूला भले सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको हम P से डिनोट करेंगे और उसको रेट ऑफ हीट फ्लो बोलेंगे. यहाँ उसको हम हीट करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये बेस्ट वर्ड है उसके लिए, देखो हीट करंट, क्योंकि उसका वैसे भी रोल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट करंट के जैसा ही है, इसलिए उसको हम हीट करंट बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो हीट करंट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय P here in this case. So only the electric current is denoted by I and defined as the charge per unit time, whereas the heat current here is denoted by P and it is defined as the total amount of heat flowing per unit time in this way. So this is all about the heat current and its unit and dimensions. Okay. Obviously dimensions will be same as the dimension of power, which is M1, L2,
T-3। ओके, रिमेंबर पावर का डायमेंशन जो होता है वही यहाँ पे हीट करंट का भी डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा। सो नाउ वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड what are the factors on which this heat current actually depends upon। ये हीट करंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हमको यहाँ पे समझना है। यस, सो इफ यू जस्ट सी इट एक्सपेरिमेंटली, अगर एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे केयरफुली, तो ये पता चलता है कि दिस हीट करंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नो डाउट, सबसे पहली बात ये हमको पता चलती है कि हीट करंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। ठीक है, उसका रेट जो है हीट फ्लो होने का वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर एरिया ही कम है, अगर एक पतला रॉड अगर ले लिया, तो उसको हम कितना भी हीट करेंगे तभी भी वो हीट इतना फास्ट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही कम है। लेकिन उसके बजाय अगर हमने एक बड़ा क्रॉस सेक्शन वाला अगर रॉड ले लिया या सिलेंडर ले लिया सपोज, तो इस सिलेंडर के अंदर से हीट जो है वो आराम से फ्लो हो सकता है, क्योंकि इट इज ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड। सो ब्रॉड होने के कारण एट अ टाइम बहुत सारा हीट जो है वो इसमें से फ्लो हो सकता है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही बहुत ज्यादा है। तो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतना यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो और वी कैन से हीट करंट ज्यादा हुआ करता है। ठीक है, सो हीट करंट डिपेंड्स ऑन एरिया। ये सबसे पहली बात हमको पता चल गई। ठीक, दूसरी बात हमको पता चल सकती है यहाँ पे कि हीट करंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ग्रेडियंट, where temperature gradient is nothing but the temperature difference upon delta x, or we can just remember this fact in these two forms, that is rate of heat flow depends on the temperature difference first of all। तो ये तो सीधी बात है कि अगर यहाँ पे समझो ये सपोज एक रॉड है, और अगर मान लो ये दूसरा रॉड है। ठीक है, ये दोनों रॉड सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, लेकिन अगर इनके यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर अगर यहाँ पे है 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सपोज है 40 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब हमने टेम्परेचर डिफरेंस देखो सिर्फ 10 का रखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ पे है अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, ओके, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या समझते हो कौन से रॉड में से ज्यादा हीट फ्लो होगा? जरूर just think and just put it in the chat box। See here, the temperature difference, the temperature of the hot end here is 50 degrees Celsius, and the temperature of cold end is 40 degrees Celsius. Whereas in the second case, the temperature of hot end is going to be 500 degrees Celsius, and the temperature of the cold end is 10 degrees Celsius simply. So which rod will just carry the more amount of heat per unit time? कौन से रॉड में से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा? हीट दोनों से फ्लो होगा नो डाउट, लेकिन कौन से रॉड के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होगा per unit time? So we can just understand that the second rod will just carry the maximum amount of heat. Very good, yes, the second rod will just carry the maximum amount of heat per unit time. The reason behind it is that the temperature difference here, the temperature difference in this case is very much large। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है देखो ठीक से, अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए ट्राई करेंगे तो यहाँ पे 500 माइनस 10, तो यहाँ पे वो 490 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। समझ सकते हो ठीक से? और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ओनली। ओके, सो इन दिस केस यू कैन जस्ट सी दैट द actually the amount rate of heat flow depends on the temperature difference, not the actual temperatures here। ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर मान लो ये सेम सिचुएशन हम लेते हैं, और अगर मान लो कि ये जो फर्स्ट रॉड है, तो इस फर्स्ट रॉड के एंड पॉइंट्स में जो टेम्परेचर है डिफरेंस है वो है सपोज 600 डिग्री सेल्सियस, ओके, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है सपोज 400 डिग्री सेल्सियस, ओके, और ये सेकेंड रॉड है यहाँ पे, इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे है 300 डिग्री सेल्सियस, या चलो यहाँ पे है 150 डिग्री सेल्सियस, और इस एंड पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है -150 डिग्री सेल्सियस।
Okay. Now just tell me which rod will just carry the more amount of heat per unit time. किस रॉड में से ज्यादा रेट से हीट फ्लो होगा, फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले, क्या समझते हैं? एवरीथिंग एल्स इज सेम. Very good. Second, again, just because we can just find out the temperature difference here. The temperature difference अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो 600 माइनस 400 अगर करेंगे तो 600 माइनस 400 कितना आता है? 200 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. That is the temperature difference here. But if we just see the second rod here, then we can just get that 150 minus 150. So difference कितना हो गया? तो वो तो 300 हो गया. अभी 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस मतलब जरूर ज्यादा हो गया 200 से. यहाँ पे तो सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है. तो जरूर इसमें से ये सेकेंड वाले रॉड में से ज्यादा रेट के साथ हीट फ्लो होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट वन, जस्ट बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस इज ग्रेटर. सो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हमको ये सब चीजें याद रखनी होती है, ठीक है. सिर्फ हमको वैल्यूज याद नहीं रखने हैं, वैल्यूज फोकस नहीं करने हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिख रहा है इसलिए डिफरेंस भी ज्यादा होगा, नहीं. व्हाट वी वांट इज डिफरेंस. यस, सो हियर टेम्परेचर प्रेशर पावर और द हीट करंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना फास्ट हीट फ्लो होगा जरूर. इन द सेम वे एज जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा रेट से कोई भी लिक्विड फ्लो होता है किसी भी पाइप के अंदर. जैसे अगर देखो ये सपोज एक पाइप है, नॉर्मल पाइप, वाटर कैरी करने वाला पाइप अगर मान लो सपोज, और अभी यहाँ पे अगर प्रेशर डिफरेंस हम बहुत फोर्स के साथ अगर पानी को अगर प्रेस करेंगे अंदर, तो उसकी वजह से बहुत फास्ट जो है पानी जाएगा आगे, तो उसका जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगा और उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा होगा. इसका रीजन क्या है? प्रेशर डिफरेंस. सो जैसे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस का रोल होता है, सेम वही रोल यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का यहाँ पे क्रिएट होता है. So the temperature, more temperature difference causes more heat to flow per unit time, or the more temperature difference causes the heat to flow at a faster rate, okay, at a high rate. And in this way, that's why we can just say that this second statement is that the heat current actually depends on directly on the temperature in this way, the temperature difference actually. And the third thing we can just say here is that the rate of heat flow is inversely depending upon the length of this conductor, length of the conductor. ठीक है, ये जो कंडक्टर का जो क्रॉस ये जो लेंथ है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड करेगा इनवर्सली. तो देखो फॉर एग्जांपल इफ सपोज देयर इज अ रॉड which is only 10 centimeter long, but on the other hand if suppose there is another rod which is just like 100 centimeter long, ओके. तो अगर ये दो इस तरह से रॉड है, तो अगर हमने सेम टेम्परेचर डिफरेंस अगर मेंटेन किया, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे सपोज 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस हमने सेम रखा है सपोज, तो ऐसे हालत में हम देख सकते हैं कि जरूर ये जो फर्स्ट वाला रॉड है तो उसके अंदर ज्यादा रेट से हीट फ्लो होगा, जस्ट बिकॉज हीट को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही वो यहाँ पे पहुंच जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो बहुत ज्यादा होगा. लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो बहुत कम होगा क्योंकि उसको डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है. तो दैट मीन्स द लेंथ जितना ज्यादा उतना रेट ऑफ हीट फ्लो कम, और जितना लेंथ कम तो उतना रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा. इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे जस्टिफाई हो गया. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैन जस्ट से दैट दिस rate of heat flow, or we can say heat current, is actually depends inversely on the length of conductor in the direction in which the heat is flowing in the conductor. Or we can also denote it by delta x, no problem. अगर उसको हम delta x से भी डिनोट करेंगे तो भी चलेगा बिल्कुल. और इन दोनों को ही कंबाइन करके हम यहाँ पे बोल रहे थे कि रेट ऑफ हीट फ्लो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ग्रेडियंट हियर. सो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको ही हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल सकते हैं. सो नाउ जस्ट कंबाइन ऑल दीज थ्री हियर. तो ये तीनों कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं? द हीट करंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी
upon delta X, right? So this is the basic principle we have to understand. The rate of heat flow or heat current actually depends directly on the area, and also it depends on the temperature gradient of that rod. Remember, and if we introduce a constant here, यहाँ पे अगर constant of proportionality अगर introduce करते हैं, so that constant can be denoted by K here, and we can just write this formula as P is equal to, यहाँ पे proportionality के बदले equal to आ जाएगा, और यहाँ पे constant आ जाएगा K, और A और delta T by delta X जो है, it is kept as it is in this way. So this is the formula for rate of heat flow, or we can say this is the formula for heat current actually. Yes, and if you just try to write down this in terms of the length of conductor, तो ये delta X जो है उसको हम length of conductor से replace कर सकते हैं, और delta T जो है उसको हम T1 minus T2 बोल सकते हैं, where T1 minus T2 is going to be the temperature difference between the end points of that conducting rod. Okay, so this P will actually become equal to A into bracket में यहाँ पे आ जाएगा T1 minus T2 upon L, where L is actually going to be the length of conductor, remember. And now if you just try to write this formula slightly in this way, ये जो KA है उसको हम इस तरफ भेज देंगे नीचे की तरफ, और ये L जो है उसको हम न्यूमरेटर में भेज देंगे दूसरे साइड में, जिससे हमको एक तरफ सिर्फ T1 minus T2 मिलेगा, और उस तरफ हमको मिलेगा P into L and upon K into A. Okay, and that is going to be actually equal to T1 minus T2 as it is here in this bracket. So we can just write that this T1 minus T2 here is going to be actually equal to, तो देखो ये L upon KA kept as it is, and that is to be multiplied by P here, where P stands for heat current. Okay, so this formula has a very elegant significance. Okay, what is the significance of this formula? Is this is nothing but the Ohm's law. In conduction, thermal conduction. Okay, how can we call it as Ohm's law in thermal conduction? See here, Ohm's law क्या कहता है? We already studied Ohm's law in current electricity, which tells us that V, that is the potential difference between the two endpoints of a conductor, is already equal to resistance into the current. Correct है? And potential difference is the something which causes the current to flow. Correct है? अगर मान लो एक सेल है, तो इस सेल का ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जब हम कहते हैं कि there is a potential difference of 5 volt between these two, that means this cell is capable of flowing the current in the wire when it is connected through external circuit, and that current will just depend on this potential difference actually. तो जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट भी ज्यादा होगा. तो ये एक ऐसा एक कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है. अगर इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस एट ऑल, देयर इज नो करंट will flow, and the current always supposed to flow from high potential to low potential, the point at high potential to low potential. तो कभी भी हमेशा करंट जो है वो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. In the same way here in this case, in the case of thermal conduction, the heat is supposed to flow from the body at high temperature to the body at low temperature. तो किसी भी कंडक्टर के अंदर हीट जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर वाले एंड पॉइंट से लो टेम्परेचर वाले एंड पॉइंट की तरफ हीट फ्लो होता है, हमेशा याद रखो. सो ये जो हीट का फ्लो होना है तो वो हम एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक करंट के साथ इक्विवेलेंट बता सकते हैं. एंड what is the cause of this heat flow? That is the temperature difference. In the same way as the potential difference causes the electric current to flow through the circuit, in the same way here in case of the thermal section, the temperature difference actually causes the heat to flow through the circuit, and therefore this temperature difference actually plays the same role as that is played by the potential difference in case of the electric current circuit. Okay,
So therefore we can just replace this T1 minus T2 by V here. And ये जो P है, P के बारे में हमने already बोल दिया है कि it is itself called as the heat current, and it plays the same role as that of the current in case of electric circuit. Therefore this P is denoted by I, or it is replaced by I here, and we can just replace this quantity which is there in the bracket by the resistance, we can see, and or we can just call it as a thermal resistance. अब ये जो है वो तो हमारा normal Ohm's law है, but if we just compare this Ohm's law with this equation here, then we can just be able to understand that the temperature difference is playing the same role as that of the voltage or potential difference in case of current electricity. Again, the heat current here is playing the same role as that of the electric current in case of electric circuit. Then we can just conclude here that the quantity L upon Ka plays the same role as that of the electric resistance of a circuit in this way. So therefore, we can just understand here that the electric resistance, what is the formula for electric resistance then? How can we understand what is the formula? So what is the formula for electric resistance? We can just denote it by RTH. Thermal resistance actually will be actually the L divided by Ka. Okay. Here, this constant K is actually called as the coefficient of thermal conductivity. Remember, what is this called? Thermal conductivity. Yes, this is the value of K here. K को हम क्या बोलते हैं? Coefficient of thermal conductivity. Yes, and this gives an idea about how much the conductor is capable of conducting the current through it. तो कोई भी कंडक्टर जो होता है तो वो कितना करंट खुद में से पास करके ले सकता है, तो उसको या हीट करंट है ऑब्वियसली, नॉट इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट कितना इजीली वो पास कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. फॉर एग्जांपल, जिन सब्सटेंस के अंदर से हीट बहुत इजीली पास हो जाता है, जस्ट लाइक वी कैन से ऑल मेटल्स लाइक कॉपर और गोल्ड या सिल्वर या सपोज आयरन, ये सब जो मटेरियल्स है इनमें से हीट इजीली पास हो जाता है. हीट कैन पास थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इजीली through these conductors, and that's why they are called as good conductors. So their value of K will be very much high. Remember, so ये जो good conductors होते हैं इनका जो K का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है. लेकिन जिनको हम bad conductors बोलते हैं, just like wood, okay, wood में से हीट जो है वो इतना जल्दी फ्लो नहीं होता है, या नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स वी कैन से, जस्ट लाइक सल्फर, अगर आपने देखे हैं all non-metals, so you can in this say the non-metals, or even water or air, all these all these materials are actually called as the bad conductor of heat. Why they are called so? Why they are called bad conductors? Just because the thermal conductivity is very small in this case. तो thermal conductivity के जो values है उनके वो 0.0025 ऐसे रहेंगे, जो कि बहुत छोटे हैं. लेकिन यहाँ पे जबकि गुड कंडक्टर्स के बारे में हम देख सकते हैं कि जो के का जो वैल्यू है वो 550 या 600, 750, 800 लाइक दैट. तो इस तरह से इनके के वैल्यूज होते हैं, जिससे ही उसको हम बोल सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो. तो मोस्टली क्या होता है ना कि जनरली द सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are also the good conductors of heat also, but not always. ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो हीट का या जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा वो हीट का भी गुड कंडक्टर होना ही चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा तो वो हीट का भी बैड कंडक्टर होना ही चाहिए. ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट इट्स फाउंड इन नेचर जनरली. ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि जो हीट को ज्यादा अच्छी तरह से पास कर सकता है, फ्लो कर सकता है खुद में से, वो इलेक्ट्रिक करंट को भी खुद में से इजीली फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो करता है वो हीट को भी फ्लो कराता है. तो
good conductors of electricity and good conductors of heat are almost they are same only, ठीक है. And even bad conductors of electricity, जैसे देखो wood या और वाटर, प्योर वाटर, नॉट मिनरल वाटर, मिनरल मिक्स किया हुआ होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कुछ ना कुछ फ्लो हो सकता है, लेकिन प्योर वाटर इज एक्चुअली द बैड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो एंड एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, ठीक है. एंड हेंस वी कैन जस्ट से दैट, जस्ट वेट अ मिनट, yes, okay, so this is all about the uh, good conductors and bad conductors of heat. Here we have defined an important concept called as the thermal resistance, okay, and also we have defined the concept of the coefficient of thermal conductivity, ठीक है. ये दोनों जो concepts है वो थोड़ा हम अलग स्क्रीन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके बारे में. yes, first of all we'll just talk about this coefficient of thermal conductivity. तो ये जो हमने यहाँ पे अभी देखा कि heat current depends actually on the area of cross section and also it depends on the temperature gradient. So because of that we can just get this P to be simply equal to K into, so here K into A into delta T by delta X, ये फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है. तो अब इसमें से K का वैल्यू क्या बनेगा? K कैन बी एक्चुअली रिटर्न टू बी इक्वल टू सिंपली, ये जो K है निकालने के लिए हमको ये A को भी और डेल्टा T by डेल्टा X को भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, राइट. So because of that we can just say it will be P upon A into delta T by delta X, right, in this way. So here if we just talk about the unit of K, then K का यूनिट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? K का यूनिट मिलने के लिए इस P का भी यूनिट डालना पड़ेगा, एरिया का यूनिट डालना पड़ेगा और डेल्टा T और डेल्टा X का भी यूनिट डालना पड़ेगा जरूर. So let us do all these things here. So P जो है हीट करंट, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट इज मेजर्ड इन, उसके चार यूनिट्स है ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है ना. तो इसलिए हम यहाँ पे उसको सपोज अगर ऐसा यूनिट मैकेनिकल सिस्टम में अगर ऐसा यूनिट हम चाहिए हमको तो वो हमको मिलेगा वैट. सो इसको हम वैट लिख सकते हैं. और यहाँ पे एरिया जो है, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, राइट, एंड डेल्टा टी विच इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और सिंपली केल्विन कैन से, चलो केल्विन में ही रख देंगे उसको, और पर मीटर एज इट इज. तो यहाँ पे केल्विन पर मीटर और डिग्री सेल्सियस पर मीटर भी हम लिख सकते हैं उसको. तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और हमको क्या मिलेगा देखो. सो यू कैन जस्ट कॉल इट एज वैट पर मीटर केल्विन, ओके. एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट दिस वैट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकेंड, करेक्ट है. तो ये पता होना चाहिए तुमको, जूल पर सेकेंड माना ही वैट होता है. और अगर उसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर और केल्विन पर सेकेंड से, पर मीटर से, तो उसमें वापस से एक बार यहाँ पे ये मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या सिंपली, और ये सेकंड जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगा. तो यू कैन जस्ट से दैट दिस विल बी जूल पर मीटर केल्विन सेकंड, ओके. सो रिमेंबर दैट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द SI यूनिट, और इवन वी कैन कॉल इट एज दिस ऑल्सो, ठीक है. या तो ये या तो फिर ये वाला, तो दोनों में से कोई भी एक जो है तो वो कैन बी, इट कैन बी कॉल्ड एज अ SI यूनिट ऑफ SI mechanical SI unit of the coefficient of thermal conductivity, that is K here. So that you can just say that K is measured in the units of joule per MKS. Don't just get confused. ये MKS का मतलब क्या है समझा ठीक से. M का मतलब क्या है, मीटर, रिमेंबर मीटर. K मतलब केल्विन, ओके, केल्विन. और S का मतलब है सेकेंड्स, नो डाउट. नहीं तो वो MKS मतलब तुमको वो MKS सिस्टम के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है. ऑलरेडी वी हैव सीन द MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, इजंट इट. तो वो MKS सिस्टम वो वाला MKS अलग है. तो उसके अंदर MKS के अंदर इसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. तो M का मतलब मीटर ही है वहां पे, लेकिन K का मतलब किलोग्राम है उधर, जबकि यहाँ पे K का मतलब किलोग्राम नहीं केल्विन है. तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके. बट हाँ रिमेंबर, मतलब यहाँ पे याद रखने के लिए तुम ये लर्न करके रख सकते हो कि द SI यूनिट ऑफ
thermal conductivity is going to be joule per mks. ठीक है, but remember this also that K stands for Kelvin and not for kilogram. Okay, or we can just call it as watt per meter Kelvin also. Watt per meter Kelvin तो और ही easy है learn करने के लिए, है कि नहीं? Yes, so this is all about the uh, thermal conductivity, and dimensions can also be found out easily because we already have the formula. So dimensions निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी K का डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P के डायमेंशन पे रखने पड़ेंगे. P मतलब क्या है? हीट करंट, विच इज सेम एज थर्मल पावर. एंड थर्मल पावर मतलब भी पावर है ना, हो गया वो एक तरह से पावर ही हो गया. तो पावर का डायमेंशन तो हमको ऑलरेडी पता है, इट इज एक्चुअली m1 l2 and t-3. This is the dimensions of power. And if you don't know this, we can just find it out, because power is going to be the amount of heat flowing per unit time. तो टाइम का डायमेंशन तो चलो टाइम ही है, टी है, लेकिन वर्क डन या हीट का डायमेंशन क्या होता है? सेम एज एनर्जी. तो एनर्जी मतलब वो बन गया m1 l2 t-2. This is the dimensions of energy or heat, we can say. And if we just take this t in the numerator here, then we can just be able to get this as t raised to -3, and this is the dimension of power. We have got it here. Yes, and apart from that, this area is going to be l2. Okay, length का square, ये उसका dimension बनेगा. And what is the dimension of this temperature gradient here? It is a delta T, मतलब temperature difference, which is measured in Kelvin only. तो यहाँ पे Kelvin आ जाएगा, और नीचे जो है delta X, it is again the distance only. So therefore it will be L1 only here in this way. Okay, so if we just try to find it out, then we can just be able to get this L2 cancel straight away, and this L1 will just go up and remain as it is. So finally we can just say that it will be M1 L1 t-3 and k-1. Okay, this will actually be the dimensions of the coefficient of thermal conductivity here, remember. Okay, और रही बात दूसरी जो रेजिस्टेंस के बारे में, थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है, तो हमने ऑलरेडी अभी देखा कि उसका फॉर्मूला क्या है. दिस थर्मल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू RTH, उसको हम बोल सकते हैं. So it is going to be length of the conductor upon K into A. Okay, length of the conductor upon thermal conductivity into A. ये है थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. एंड ओम्स लॉ भी हमारे पास है, जो कहता है T1 minus T2 is actually going to be equal to thermal resistance RTH into the heat current, that is denoted by P here. So thermal resistance का और एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, जो कि T1 minus T2 upon heat current, that is P here. तो ये भी एक फॉर्मूला है थर्मल रेजिस्टेंस के लिए. अभी इसमें और एक बात हम चलो ठीक है, सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस का SI यूनिट ढूंढ के निकाल सकते हैं आराम से. देखो, what is the SI unit of thermal resistance? We can just say thermal resistance is actually measured in अभी जैसा कि हम जानते हैं T1 minus T2 is measured in Kelvin, no doubt. At the same time P जो है, तो ये P यहाँ पे मतलब थर्मल पावर या वी कैन से हीट करंट है, और हीट करंट के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो है जूल पर सेकेंड, और वी कैन कॉल इट एज वैट. सो केल्विन पर वैट is actually going to be the SI unit of thermal resistance here, remember. So thermal resistance is actually measured in Kelvin per watt, or also we can just call it as Kelvin second per joule. Okay, because यहाँ पे watt जो है, watt is equivalent to joule per second, so that second will just go up in the numerator and we'll just multiply this Kelvin here. So Kelvin second per joule is also the SI unit of this thermal resistance here. And एक बात हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है कि जैसा कि हम जानते हैं इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी कंडक्टर जो होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे डिपेंड करता है. और ये हमने ऑलरेडी देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. So electric resistance actually directly proportional to length of this conductor, and also it is inversely proportional to the
एरिया ऑफ कंडक्टर, करेक्ट है, ये हमने ऑलरेडी देखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और इन दोनों को कंबाइन करके ही हमको ये मिलता है कि द रेजिस्टेंस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड एरिया of this conductor, and the constant of proportionality here is actually denoted by rho, that is called as the specific resistance, and hence we can get the formula for resistance to be actually simply rho L upon A here, where rho is the specific resistance, or we can just call it as a resistivity. And if we understand that rho के बदले हम 1 upon sigma भी replace कर सकते हैं, सिग्मा इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमको और एक मिल जाएगा। इस रो के बदले अगर हमने 1 अपॉन सिग्मा रिप्लेस कर दिया तो हमको मिलेगा लेंथ एल अपॉन सिग्मा इनटू ए हियर इन दिस वे। एंड नाउ वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थर्मल रेजिस्टेंस हियर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ पे L मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A मींस एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एंड सिग्मा हियर इज गोइंग टू बी द electrical conductivity, right? Electric conductivity of the conductor. So here in the same way here, we can just see the thermal resistance actually happens to be the length of conductor upon area of conductor, cross section area, and K is actually here is called as the coefficient of thermal conductivity. That means here, if the role played by this sigma, that is electrical conductivity, is exactly same as the role that is played by this K, which is called as thermal conductivity here. So यहाँ पे thermal conductivity है और वहाँ पे electrical conductivity होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ तो डिफरेंस है नहीं। देखो यहाँ पे लेंथ तो अपनी जगह पे है, एरिया अपनी जगह पे है, सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है तो वो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी से रिप्लेस हो गया, तो उसकी वजह से ये जो फॉर्मूला है तो वो हमको उसमें से भी मिल जाता है। एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस आर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस हियर। तो जैसे दो रेजिस्टेंसेस या दो कंडक्टर्स अगर हम सपोज सीरीज में लगा देते हैं तो उसकी वजह से उनका जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है, ये हमको पता है ऑलरेडी। सो हियर इन दिस केस आल्सो, if suppose the two conductors are just kept in series, then and suppose that first conductor is having the resistance, thermal resistance R1 and R2 suppose, then whenever these two conductors are just connected end to end like this, then the combined resistance of series combination here in this case will actually be R1 plus R2, which is very similar to the behavior property of resistance in series combination in case of an electrical circuit. Okay, even if suppose the two conductors are just kept parallel to each other, अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस अगर हम पैरेलल में लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो हम देखते हैं कि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है तो वो आरपी से दिया जाता है, और उसका जो फॉर्मूला है वो हमको पता है 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 के बराबर हुआ करता है। सो इन द सेम वे हियर, इफ सपोज देयर आर टू कंडक्टर्स, हीट कंडक्टर्स व्हिच आर जस्ट केप्ट पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस। अभी ये दोनों कंडक्टर्स पैरेलल होने का मतलब क्या है, means their cross sectional area is actually getting added up together, whereas the length is going to be the same. तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 अगर है तो कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A1 प्लस A2 बन जाएगा और लेंथ सेम होगा। सो इन दिस केस द टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन्स द सेम and the heat current just get divided in these two parts here, and that's why we can just understand here in this case that the total resistance, effective resistance of this whole system of the two conductors will be given by 1/rp, which is going to be equal to 1/r1 plus 1/r2, which is in the same way as we have already studied it in the case of electricity here. तो जो जो प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी हीट सेक्शन में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्लेस करना है टेम्परेचर डिफरेंस से, और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्लेस करना है हीट करंट से, और उसकी वजह से हमको यहाँ पे मिलता है कि सीरीज में अगर दो कंडक्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए तो हीट करंट विल रिमेन द सेम, बट द पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस विल जस्ट गेट डिवाइडेड। ओके, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन the temperature difference will remain the same, but heat current will just get divided. So these are the properties of thermal resistance here in this case. Okay,
तो चलो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पे की है. Okay, almost it is 4:58.